case with the help of which you can do some kind of enrichment in this particular chapter. Okay, correct. So if you just analyze the previous year question, what were the previous year questions in the UPSC, what UPSC is asking, then you will see that majorly questions were asked from these areas. So you already know that what are the major schools of psychology. Okay, there is no doubt about them. You know about structuralism, functionalism. Okay, these kind of school. So these are the major schools of psychology. The first area from which introduction chapter. This is the first major theme. The second one is systems in psychology. This we will understand. It might be possible that you have not understand about the system so far. Okay, so there is also systems like we can debate in psychology on the basis of some systems like mind versus body. Okay, molar versus molecular. So these are the systems in psychology. This we will see. The third major area, psychology as a different discipline. Okay, now discipline means like first psychology, why it is not a common sense, why it is not limitation, and why it is used as science, and why it is used as social science. Okay, so this is the description from which UPSC asks questions. The last one, use of psychological knowledge in solving societal problem. This is important. Okay, so in this particular fourth area, you need to understand the application of paper 2. Okay, so in the last area, like if you analyze the PYQ, then you will see that there are so many questions like how can we use the knowledge of psychology in solving societal problem? How can we use the knowledge of psychology in solving problem of climate change? Okay, drug abuse, etc., etc. Okay, so all these learnings we get from the social psychology. Okay, so there are various principles in social psychology which you need to understand and which you must mention while writing such kind of answers. Okay, so first of all, I am just giving you overview about the major schools of psychology. Okay, so I will not define them, but I will show you that why, how we can write them, how we can write in them in your answers. Okay, see, whenever you write the answers in paper 2, okay, we are not talking about the questions of introduction. In paper 2, there are topics like well-being or therapeutical approaches. Okay, so in well-being or therapeutical approaches, or if a question comes like, what is the reason of this attitude change? What is the reason of this particular behavior in adolescents? What is the reason of this particular behavior in child? Then you need to draw various dimensions in your answer. Okay, for example, in GS, what we do, we divide our answer into multiple dimensions: societal, political, geographical, institutional, demographical. Okay, in the same way, we need to make multiple dimensions in psychology also. Okay, so when we write the reason for something, try to give multiple dimension. Okay, so for example, Manasvi also in his session told that he used to add one dimension which is biological. Okay, now we tend to think that biological dimension should not be added in psychology answer, but you can add them because psychology is multidimensional. Okay, psychology has connection with every field. It has connection with biology, it has connection with science, social science, everything. Okay, so when you write the answers, when you give the reasons of something, then you need to mention multiple dimensions in your answer. Okay, now what could be the multiple dimensions? Okay, this we can discuss. Okay, so I hope you already know what structuralism is. You already know what functionalism is. Okay, just to give an overview, structuralism school was given by Edmund Titchener. Okay, it focuses on the study of consciousness and its component. The second one is functionalism. It was given by William James. Okay, it focuses upon memory, learning, emotions, survival, growth, adaptation of human beings. Okay, so in the starting, structuralism come, in the later on period, functionalism come. Okay, these two schools are not famous these days. Okay, the famous schools are schools of behaviorism, humanism, biological, cognitive. Okay, so these type of dimensions you should mention in your answer. Okay, for example, you are giving the reason of something, then try to add the dimension of behavioral angle. He is behaving like this because of this particular thing. ठीक है कि उसको ऐसा response ऐसा मिल रहा है. ठीक है, ये ऐसा response है. He is not getting enough reward. He is not getting enough reinforcement. So this is what? This is the first. You can add behavioral dimension. Okay, in the same way, you can write about the humanistic school or humanism dimension. This could also be one of the dimension. Okay, you can
can mention about Carl Rogers, or you can mention about like Maslow also. Okay, humanistic perspective. This you can mention. Okay, so in this way, the multiple dimensions should be mentioned, and you should also try to mention the name of the scholars also in this particular dimension. जो scholar famous है, आप उनका नाम ऐड करते जाओ, ठीक है, आपका काम हो गया. बस एक आपको मल्टीपल, आपको अपने जो आंसर्स हैं वो आपको डायमेंशन वाइज लिखने हैं. जितनी ज्यादा डायमेंशन होंगी उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक क्या बात कर रहा था कि हर एक ह्यूमन बीइंग यूनिक होता है. ठीक है, तो एक पॉजिटिव व्यू था. ही इज टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव व्यू. मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव व्यू. एक पॉजिटिव व्यू होगा. माइक म्यूट पर रखो अपनी. ओके, एक पॉजिटिव व्यू पर होगा, है ना. नाउ फ्रॉम द सेम थिंग, फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक स्कूल, you can also mention about positive psychology. It is also one of the branch, okay, which was given by Martin Seligman. Okay, so this could also be dimensioned in your answer. Okay, for example, all the schools were telling about treating the mental health, but positive psychology is telling about promoting the awareness about the mental health. Okay, so this is a positive approach again. Okay, so this could be at in this particular dimension also. ठीक है, एक आपको positive psychology की dimension ही मिल गई, है ना. You can say biological, ये तो हम कह ही सकते हैं, genes की वजह से. Okay, you can mention about hormones की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी हैंडी इन माइंड. ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया पेपर 2 का, ठीक है, तो आपको पेपर 2 में तभी तो हम आंसर्स मार्क्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ पेपर 2 वी राइट rudimentary answers, same concept, same statistics. There is no dynamism in the answers of paper 2. ठीक है, वहां पर आपको you need to bring some kind of creativity. Okay, some नयापन, new thing, आपको कुछ लेके आना पड़ेगा. Okay, so try to add different dimensions. Cognitive, same. Something, there is a mental, ठीक है, mental process disturb, thinking process develop, faulty cognitions are there. Okay, I will give you the PDF of this, so just listen to me. No need to write anything. Okay, just listen to me. Okay, try to remember everything in the class only. ठीक है, बस सब कुछ आपको याद हो जाए, सारा का सारा ओवरव्यू मिल जाए आपको. ठीक है. Okay, now see, this dimension is very famous. Again, Sigmund Freud. You can relate everything to the unconscious part. Okay, so this should be handy. Okay, you should remember this. कोई भी रीजन आ गया तो unconscious से आपको रिलेट कर देना है. Okay, so unconscious behavior, there are some conflict, there are some hidden desire. Okay, there is some dead instinct in the unconscious part, due to which इसका इस तरीके का behavior निकल के आ रहा है. Okay, other than this, you can also add 3 more perspective I have written. The first one is evolutionary perspective. The second one is the perspective of social constructivism, socio-culture, and information processing. Okay, so like how many dimensions we have seen? First, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or 10. 10 major dimensions we have seen. Okay, so if you just able to inculcate 6 to 7 dimension, in 6 to 7 dimension, one researcher name and one or two point sufficient. This is the perfect main body for any kind of answer in the paper 2. Okay, so in this way, you need to connect with the paper 1 and the paper 2. इस तरह से आपको दोनों में कनेक्शन बिठाना है. ठीक है, अभी हम और देखेंगे जब when we see the later part, that how can we use the concept of psychology in solving the problem of the society, तो वहां पर भी कैसे पेपर 2 कनेक्ट होता है. ओके, सो ये आपको करना है ना. ट्राई टू डू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, जैसे इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, दिस इज आल्सो द मोस्ट फेमस पर्सपेक्टिव. सो जस्ट रीड अबाउट दिस पर्सन, डेविड बस. इनके बारे में आप पढ़ लो. ठीक है, सारा काम आपको हो जाएगा. यू विल गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव. ठीक है. ओके, सो डेविड बस relate everything to the evolution of the human being. Okay, so according to David Buss, women display greater distress than men. Okay, because of their origin, because of their evolution, because of their different mating goals. ठीक है, men and women they have different mating goals. ठीक है, उनके अलग अलग mating goals होते हैं, उसकी बेसिस पर उनका सारा का सारा behavior निकल के आता है. Okay, for example, from this perspective, women are more emotionally invested in another person as compared to men. Okay, men on the other hand become more distressed than their women for some other different cases. ठीक है, तो आप ये एक पर्सपेक्टिव उसमें ऐड कर सकते हैं whenever there is a question about behavior change or aggression or anything. Okay, so this could be an addition in your answer. ठीक है, ये आपके में क्या होगा, एक addition निकल के आ जाएगा. In the same way, you can mention about Vygotsky, you can mention about Piaget,
You can mention about Duner. इनके बारे में you can mention about. Okay, these were what ये कौन थे हमारे social constructivism थे. Okay, like for example, they talked out learning is a social activity that takes place through interaction with others. यही तो बोलता था वी गॉट स्काई. वो क्या बोलता था कि हम दूसरों से इंटरेक्ट करके सीखते हैं चीजों को. ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वी गॉट स्काई. ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ठीक है, इसका फोल्डर्स. ओके, हु आर इसका फोल्डर्स? इसका फोल्डर्स इज योर एनवायरनमेंट. यू गेट इसका फोल्डर्स ऑन द एनवायरनमेंट. आई एम योर इसका फोल्डर्स. समवन कैन एल्स बी योर इसका फोल्डर. तो इन्हीं से तो आप लोग सीखते हो. ओके, दिस कुड बी वन डायमेंशन. सोशियो कल्चरल कुड बी वन डायमेंशन. Okay, I have never seen this dimension in any of the answers so far. This could also be a dimension. For example, psychologists always found that there is a difference in social norms between Western cultures and Indian culture. Okay, between US and India, there are difference in culture, na? Okay, for example, norms in Western culture, they are morely oriented towards individualism. Okay, they value themselves more. Okay, children in Western cultures, they are taught to develop and to value a sense of their personal self. ठीक है, but in Eastern culture it is something else. We are having a collectivistic culture. हम collectivistic culture की बात करते हैं. तो हमारे यहाँ पे social norms अलग हैं, वहां पर social norms अलग हैं. इस वजह से सारी की सारी दिक्कतें निकल के आती हैं. Okay, so this could be one dimension. Okay, information processing dimension, ये भी आप ऐड कर सकते हैं. Human mind. Okay, this dimension, the major proponent of this dimension was Ebbinghaus. एबिंगॉस का आप नाम मेंशन कर सकते हैं. ओके, एबिंगॉस मेजर बताया था उन्होंने. ठीक है, सो एबिंगॉस हु आल्सो गिवन द फॉरगेटिंग कर्व. ठीक है, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं. इन कल्चरल यू कैन ऐड द नेम्स ऑफ मेसोदी. MASOUDI. MESOUDI. Okay, he talk about different like individualistic culture, collectivistic culture. Social constructivism में आपके पास नाम है ही. Evolution में डेविड बस हो गया. ओके, साइको एनालिसिस में यू नो द नेम. गेस्टाल्ट में यू नो द नेम कोहलर, कोटकोफ्का. ओके, मैक्स वर्तीमर. ठीक है, ये भी आपका डायमेंशन आपको पता है. कॉग्निटिव में यू नो द नेम. ओके, बायोलॉजिकल में यू कैन मेंशन फॉर कॉल्व एंड विश्वा. एंड ह्यूमनिस्टिक कार्ल रॉजर्स एंड एब्राहम मास्लो. ओके, एंड फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी देयर इज सेलिंगमैन. ठीक है, सो टू just to give a brief, I have also added everything here also. ठीक है, ये I will give you the PDF of this. These are some of the important names. You can just read them. ठीक है, अगर आपको इन सब का एक एक नाम भी याद रहेगा तो सफिशिएंट काम हो जाएगा अपना. ओके, और इसकी हमें जरूरत ही नहीं है. Okay, is that clear? So I'm not telling you, I'm not teaching you that what is structuralism, what is functionalism. You know, you are aware of those particular thing. अगर उसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो. ठीक है, वो तो किसी को सबको पता होगा ना, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, फंक्शनलिज्म क्या होता है. ठीक है, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना. हमें देखना है कि हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे. ठीक है, तो आपके पास 10 डायमेंशन आ गई है ना. अब आप इनको तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करो. ठीक है, बाकी इसकी लिमिटेशन क्या होती है, इन्हें क्या क्या फीचर्स होते हैं, दिस वी आर ऑल अवेयर ऑफ. ओके, दिस वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द क्लास. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम वेयर यूपीएससी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इंट्रोडक्शन चैप्टर इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन सॉल्विंग द सोसाइटल प्रॉब्लम. ठीक है, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस टेल मी व्हाट कुड बी, टेल मी एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल वी कैन यूज टू सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम. कोई बताएगा? So operant conditioning, reinforcement, role हाँ, very good. modeling, observation learning. Operant conditioning, reinforcement, observation learning. Okay, anyone else? Reinforcement. Okay, हाँ, और बताओ. All what could be dimension? हाँ, अंकिता बोलो. Nudging. Sorry? Sir, nudging. Nudging. अच्छा, nudging. Okay. Social modeling. Persuasion. ठीक है. Okay. What? Social modeling. So social modeling like observation learning, I think same kind of thing, no? Okay. Any more point coming in your mind? Anyone else? Now I will tell you some more points. Okay, don't worry. Now all these points you already have read. सब लोगों ने पढ़े हैं. ठीक है. Okay. Can you please elaborate like persuasion में क्या हम यूज करते हैं? Persuasion को हम कैसे यूज करेंगे? How will we use persuasion? कुछ है इस persuasion में जिससे हम यूज करते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का? Premack principle. Elaboration likelihood model. हाँ, elaboration very good. ठीक है, ELM. ठीक है, central loop, peripheral loop. ठीक है, तो write about them.
you can write about them. Okay, in observation learning, nudging, here also you can mention about Bandura and anyone others people. Okay, so you should make a handy note of these kind of things. ठीक है, Hovland model also you can mention. ठीक है, तो एक पेज में आप बस ये लिख लो कि क्या क्या मेजर चीजें हैं. ठीक है, which can be used. अब now every time they are asking question. Okay, to solve the problem of drug abuse, to solve the problem of killing India. ठीक है, या फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हर बार तो वही पूछ रहे हैं. तो आप एक पेज में उसको लिख लो कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं. ठीक है, उसका अच्छा सा नोट बना लो. ठीक है, एड सम एक्स्ट्रा पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं. ओके, सम एक्स्ट्रा पॉइंट आई कैन गिव यू. Now these are the same point, मतलब आप सब लोगों ने पढ़े. Okay, this is very important. Just break down the work of the psychologist. Always write this point. Okay, for example, if they are asking any question about workplace violence, okay, just in one line mention the role of work psychologist. Okay, if they are asking about drug abuse, how to handle drug abuse, mention the name of rehab psychologist. ठीक है, ओके, तो इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो. ब्रेक डाउन द वर्क ऑफ द साइकोलॉजिस्ट. उनका जो वर्क है आप उसको तोड़ने की कोशिश करो. ठीक है, एंड सम अदर पॉइंट यू कैन मेंशन. फॉर एग्जांपल, यू टॉक अबाउट एटीट्यूड चेंज एंड पर्सुएशन. ठीक है, पर्सुएशन क्या हो गया, मतलब एटीट्यूड चेंज ही कर रहे हैं ना आप. ठीक है, अगर दोनों का एटीट्यूड इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं. अगर एक का ऐसे जा रहा है, एक का ऐसे जा रहा है, तो उसको चेंज कर दो, वापस से ऐसे लेके आ जाओ. ओके, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट चेंज, इनकॉन्ग्रुएंट चेंज ऑल अबाउट. Okay, you can use ELM, elaborate likelihood model. Okay, central root or peripheral root. Okay, if the audience is intelligent, then use central root. If the audience is not intelligent, then use peripheral root. ठीक है, जैसे हमारे नेता यूज करते हैं इंडिया में पेरिफेरल रूट का. ठीक है, क्योंकि हमें इतना कुछ समझ में आता नहीं है. ओके, एंड इन यूएस सेंट्रल रूट इज यूज्ड इन देयर इलेक्शन. होते हैं ना, 1-1.5 साल पहले से इलेक्शन शुरू हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज सेंट्रल रूट एंड पेरिफेरल रूट you can mention when you write about attitude change and persuasion. It could also be done with the help of role modeling. आप role modeling के बारे में mention कर सकते हैं. Okay, you can give some of the example when you mention about the role modeling. ठीक है, जैसे for example अमिताभ बच्चन की वॉइस थी कोविड के टाइम पर, फोन पे बजती थी ना, अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही थी. That is also role modeling. Okay, दरवाजा बंद करो कैंपेन, role modeling. ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो एडिकेट, दिस इज आल्सो रोल मॉडलिंग. ओके, सो इनके बारे में भी यू कैन मेंशन. ओके, यू कैन आल्सो मेंशन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, कर्ट लुइन फील्ड थ्योरी. ठीक है, ओके, अगर जैसे बिहेवियर चेंज की बात आपको जैसे एटीट्यूड चेंज करा रहे हो आप उसका, सो बिहेवियर चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो व्हाट कर्ट लुइन हैज सेड दैट योर बिहेवियर इज रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट. इन दोनों में लिंक होता है ना. योर बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड एनवायरमेंट. ठीक है, आपका जो बिहेवियर निकल के आएगा, एक्चुअली द फॉर्मूला इज दिस, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड एनवायरमेंट. ठीक है, तो इन जस्ट वन लाइन यू कैन मेंशन अबाउट दिस. ओके, सो दिस विल गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एक नाम भी आपको मिल गया. यू कैन यूज दिस प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, बिजनेस. ठीक है, वर्क प्लेस वायलेंस के बारे में आ गया, तो बिहेवियर आप एनवायरमेंट चेंज कर दो. ठीक है, तो वो बिहेवियर निकल के आएगा उस तरीके का. ठीक है, तो दिस कुड बी वन एक्स्ट्रा डायमेंशन अबाउट विच यू कैन मेंशन. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द वेरी कॉमन पॉइंट. ठीक है, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो कम होगी ना. ठीक है, तो ये आपको करना है. अभी कैसे कर सकते हो, अगेन यूज पेपर 2. ओके, कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस गिवन बाय एलपोर्ट, यूज इट. ठीक है, एलपोर्ट has also talked about recategorization. Okay, you can also mention about recategorization. Okay, so this is also with the help of recategorization also you can reduce the prejudices when people try to work together in a cooperative way, and when the goal is shared between the people, then automatically prejudices reduces or reduces, कम हो जाते हैं अपने आप, जब एक cooperative तरीके से काम करते हैं, शेयर तरीके से काम करते हैं. ठीक है, so this recategorization. Okay, common group identity model. This is also one of the model, common in group identity model. This particular model also talks about the same thing, कि when individual belonging to different social group, they come together. Okay, and they come together as a single social entity. Okay, then automatically they develop favorable attitude towards themselves.
ठीक है, जब अलग अलग लोग जो होते हैं सोशल ग्रुप के एक साथ में आ जाते हैं, एक सोशल एंटिटी के अंदर आ जाते हैं, तो अपने आप ही जो बायसेस और जो प्रेजुडिसेस होते हैं ना, वो अपने आप ही कम हो जाते हैं। दिस इज कॉमन इन ग्रुप आइडेंटिटी मॉडल। ठीक है, सो यू कैन आल्सो मेंशन दिस। ठीक है, अगर सोसाइटी की प्रॉब्लम के बारे में पूछ लिया, प्रेजुडिसेस के बारे में पूछ लिया, ओके, दिस जो मॉडल है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये डोवीडियो ने दिया था। ओके, डोवीडियो। ओके, सो दिस कुड आल्सो बी वन ऑफ द डायमेंशन। नाउ ये आपने पढ़ा है, पेपर टू में तो पढ़ते हैं ना ये सब चीजें। ओके, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, अगेन सोशल लोफिंग, दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से लोग कोई भी बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो सोशल लोफिंग को भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको क्या करो, आप उनको काम करने के लिए रिवॉर्ड देना शुरू कर दो। ओके, सो दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग सोशल लोफिंग। ओके, सो प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड फॉर देयर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मेक द टास्क मोर मीनिंगफुल, मेक द टास्क मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो व्हेन द टास्क इज डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग, सो इंडिविजुअल्स आर लेस लाइकली टू लोफ। ठीक है, ओके, सो यू कैन आल्सो decrease this social loafing in the society by increasing the commitment of the members। ठीक है, और by making the task very interesting। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज reducing social loafing and this is ओके, आई हैव रिटन दिस, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, शेफर ने राइट स्टडी। ठीक है, तो ये बस 8-10 पेज का है, ज्यादा कोई बड़ा डॉक्यूमेंट भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ याद करना है। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे एक दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों में कम्युनिकेशन बढ़ा दो। नाउ दिस इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव टूल होता है। ठीक है, पेपर 2 में भी आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होता है, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। ठीक है, तो एक स्टडी की गई थी, उसमें ये देखा गया था कि जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा ना, द ग्रेटर द डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन, इट विल इंश्योर मोर कॉपरेटिव बिहेवियर बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, आप नॉन वर्बल क्लू से कम्युनिकेशन कराओ। ठीक है, तो जितना ज्यादा कम्युनिकेशन आप बढ़ाओगे, ठीक है, उतना बेटर कॉपरेटिव बिहेवियर निकल के आएगा। ओके, और कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है पार्टिसिपेंट्स के बीच में, तो हमेशा कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा हमारे विचमैन थे, उन्होंने बताया था, विचमैन थे, उन्होंने बताया था कि द मोर, सॉरी, इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स, द कॉम्पिटिशन वाज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे होगा। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे होगा। ओके, सो दिस इज आल्सो, नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप सब लोगों ने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए कभी टेररिज्म का आ जाता है कि रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट बताओ कि टेररिज्म को कैसे कम करना है। ठीक है, या फिर एग्रेसिव बिहेवियर कैसे कम करना है सोसाइटी में। ओके, सो यू कैन मेंशन अबाउट दिस कैथारसिस रिडक्शन, कैथारसिस हाइपोथेसिस। ओके, सो कैथारसिस हाइपोथेसिस में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एग्रेसिव अराउजल थॉट। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट if the person gives out or vent out anger or hostility in some kind of non-harmful ways, ठीक है, so their tendency to engage in like aggressive act automatically decreases। ठीक है, तो ये हमारी कैथारसिस हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, जो बात करते हैं ना सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड ये तो बोलता था कि दैट, दो इंस्टिंक्ट की बात करता था ना, लाइफ इंस्टिंक्ट और दैट इंस्टिंक्ट। ठीक है, लाइफ इंस्टिंक्ट बोलता था सर्वाइवल के लिए, दैट इंस्टिंक्ट बोलता था कि सारे के सारे डिके कर देगा, खत्म कर देगा सब कुछ। ठीक है, ओके, एक हमारी लिबिडो की बात करता था सिगमंड फ्रॉइड, लिबिडो यानी कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी, लिबिडो को पूरा होना है, लिबिडो पूरा कैसे होगा, कैथारसिस से। ठीक है, ओके, तो अब कैथारसिस को पूरा करने के दो तरीके हैं, एक हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में आप नेगेटिव सेंस में करोगे। ठीक है, अगर मेरे में बहुत ज्यादा एंगर है तो मैं किसी को मारूंगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मेरे अंदर बहुत गुस्सा है तो मैं उसको पॉजिटिव तरीके से भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दूं। ओके, सो दिस कैथारसिस हाइपोथेसिस कुड आल्सो बी वन वन वे विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन रिड्यूस द एंगर। ठीक है, इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। ठीक है, आप इसको इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि क्राउडिंग की वजह से जब लोगों में गुस्सा आ जाता है तो आप कैथारसिस का इस्तेमाल करा दीजिए, इस हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करा दीजिए। ठीक है, तो दिस कुड आल्सो बी द वन ऑफ द वे। ठीक है, लोग काम क्यों नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक होगा, हाँ, इंक्रीज इंटरनल एट्रीब्यूशन। जैसे लोग साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज they do not have any internal motivation। okay, you all know that intrinsic motivation should be very higher। कोई भी काम करते वक्त इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक भी हो, लेकिन अगर इंट्रिंसिक ज्यादा होगा तो काम आप ज्यादा कर दोगे। अब लोग काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका ये कम होता है। ठीक है, तो लोगों में ये बढ़ा दो। ओके, लोगों में ये बढ़ा दो। ओके, किसी भी काम को उनके इंट्रिंसिक मोटिवेशन से अटैच कर दो।
ओके अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा होगा तो अपने आप ही प्रो सोशल बिहेवियर वो ज्यादा करेंगे। ओके सो दिस कुड आल्सो बी वन ऑफ द वे, ठीक है, फॉर हेल्पिंग एंड कॉपरेशन, ठीक है, ये बेटसन एट ऑल ने बताया था, मैं नाम लिख दिया आपको यहाँ पर, ठीक है, पर्सनल अपील कर सकते हैं, नॉन वर्बल अपील कर सकते हैं आप लोगों के साथ में, ताकि उनका सेल्फ कंसेप्ट इंप्रूव हो, ठीक है, वो मोटिवेट रहे इंटरनल रादर देन एक्सटर्नल। जितना ज्यादा इंटरनल एट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा प्रो सोशल बिहेवियर निकल के आएगा, ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं, आप स्कूलों का इस्तेमाल करो, ठीक है, इंप्रूव द टीचर्स बिहेवियर, ठीक है, और इंप्रूव द आउटकम ऑफ द एजुकेशन, टीचर एजुकेशन रिलेशनशिप, यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स मेथड इन टीचिंग, ओके दिस यू कैन डू, ओके ये भी आप कर सकते हैं, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द बेस। नाउ 1 2 3 4 ओके 5 6 7 आई थिंक 8 to 10 डायमेंशंस वी हैव सीन ओवर हियर आल्सो, ठीक है, 8 से 10 डायमेंशन हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है, तो उसमें मतलब आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, ठीक है, कि हम इस तरह से भी उनको यूज कर सकते हैं इफ दे आर आस्किंग एनी क्वेश्चन related to this particular thing कि how can we use the concept of psychology, so you can mention about them, ठीक है। अब बाकी ऑब्जर्वेशन लर्निंग वो तो है ही हमारे स्टैंडर्ड, वो तो हम यूज करते ही करते हैं, लेकिन हमें अपने आंसर में यूनिकनेस लेके आनी है ना, ठीक है, यूनिकनेस नहीं आएगी आंसर में तो फिर दिक्कत वाला काम होगा, ठीक है, ओके। हाँ सैमसंग, हाँ बोलिए, आपने हाथ रेस किया, आप हमें नाम तो बताइए, मेरे को नाम नहीं पता आपका। सैमसंग S7 7875। हाँ दिव्यराज, अब ठीक है, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो दिव्यराज, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू रेज योर हैंड, ओके चलो, हो सकता है गलती से हो गया हो। हाँ दिव्यराज, हमको ना सिर्फ मेंशन करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा एलेबोरेट करना है, ओके वी नीड टू राइट आवर आंसर इन 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, ठीक है, दो ही केस होते हैं जनरली, ठीक है, 150 से लेके 250 वर्ड्स का आपके पास कंटेंट होना चाहिए हर एक आंसर को लेकर, ठीक है, इतना ही तो डाटा चाहिए हमको, ओके तो इतना आपके पास, मतलब आप हर एक आंसर के को लेकर कम से कम 2.5 पेज लिख सके, ठीक है, 2.5 या 3 पेज लिख सके, इतना कंटेंट आप रखो, क्योंकि जो यूपीएससी की जो मेंस की जो रहती है वो थोड़ी ब्रॉड भी रहती है ना, तो वो दिक्कत वाला काम हो जाता है, ठीक है, तो 2.5 से 3 पेज का कंटेंट आप अपने पास रखो हर एक आंसर को लेकर, ठीक है, तो दिस आई हैव टोल्ड यू लाइक 10 डायमेंशंस, 10 डायमेंशन मैंने आपको बता दिए। नाउ इन 10 डायमेंशंस इफ यू आर एबल टू कोट 7 to 8 डायमेंशन, तो मतलब काम हो गया अपना, ठीक है, ये तो हमें करना है। नाउ ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस हम इसको अब अप्लाई नहीं कर पाते हैं, है ना। अब जैसे आपने इंट्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये सब चीजें नहीं पढ़ी होंगी आई सपोज सो, तो बस इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, जो पेपर 2 से हमको लिंक करना है वो चीज कैसे करनी है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आई हैव टोल्ड यू 2 थिंग्स सो फार, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमें फास्ट जाना पड़ेगा, हमें एक ही दिन में देखना है ना पूरा, ठीक है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर द डायमेंशंस, ठीक है, द मेजर मेजर डायमेंशन, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ठीक है, ओके, और वी कैन ऐड गेस्टाल्ट आल्सो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच आल्सो, कॉग्निटिव अप्रोच आल्सो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच आल्सो, okay, evolutionary perspective also, okay, so these are different perspective which you can write in your answer, okay. The second thing we have seen that what are different application of psychological principle with the help of which we can solve societal problem, okay. Now you will write pyq also, I am giving pyq on daily basis, आप उनको लिखेंगे तो आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हेन आई रिव्यू देम तो आपको समझ में आ जाएगा, बस आप इन पॉइंट का ध्यान रखना जब आप वो लिख रहेंगे पीवाईक्यू मैंने क्वेश्चन ग्रुप में दे दिए, ठीक है। नाउ सो व्हाट वर आवर मेजर थीम्स, मेजर स्कूल्स, दिस वी हैव सीन, use of psychology knowledge, this we have seen, okay. The second one is psychology as a different discipline. Now this is very simple, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन again just I discuss in brief, okay. So this was the like starting phase of the question. In the start, the first question, why not common sense and its limitation, like for example we are also scientists now, human beings are also everyday scientists, we also derive any relationship on the basis of fact, we also generalize thing, ठीक है, तो हम भी तो साइंटिस्ट ही हैं एक तरीके से, लेकिन हमारे जो फैक्ट होते हैं, हमारे जो डिसीजन होते हैं उसमें साइंस नहीं होती, ठीक है, हमारे डिसीजन जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, ठीक है, और इंट्यूजन्स, ओके, सो दे आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, वो परफेक्ट नहीं है ना, तो इसी को बताने के लिए दैट दे आर नॉट परफेक्ट, साइकोलॉजी को हमने साइंस की तरफ पढ़ना शुरू कर दिया, इसी वजह से साइंस जरूरी होती है, ओके। सो वी कैन नॉट रिलाई ऑलवेज ऑन कॉमन सेंस,
ठीक है, we cannot rely always on intuitions. Now why we cannot rely always on common sense and inclusion? Because of this experiment. ठीक है, अब आप ये एक्सपेरिमेंट देख लेना. ठीक है, सो इन दिस एक्सपेरिमेंट, इफ यू हैव सीन दिस एक्सपेरिमेंट, आपने पढ़े होंगे एक्सपेरिमेंट. एक तो हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्सपेरिमेंट होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, व्हिच वाज डन बाय आई थिंक फेस्टिंगर. हाँ, फेस्टिंगर ने किया था. अब इन्होंने क्या बताया था, फेस्टिंगर ने क्या बताया था कि अगर आपको याद होगा, एक एक्सपेरिमेंट होता है $1 और $20. ठीक है, कोई भी टास्क होगा उसके लिए $1 मिलेगा और $20 मिलेगा. तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि $20 वाला वो काम कर देगा. ठीक है, लेकिन थ्योरी बोलती है कि $1 वाला वो काम करेगा. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, इसको देखना आप लोग. ठीक है, वैसे पढ़ा होगा आपने कॉग्निटिव डिसोनेंस में $1 और $20 वाला एक्सपेरिमेंट. ठीक है, कॉमन सेंस. जैसे मान लीजिए आपको ये क्लास बोरिंग लग रही है. ठीक है, ओके, मैं आपको बोलूं कि बाहर जाके बोलना, झूठ बोलना है आपको. ठीक है, ओके, तो कुछ 4 लोगों को बोलूंगा कि 4 लोगों को झूठ बोलने के $20 मिलेंगे. ठीक है, और $4 को झूठ बोलने के $1 मिलेगा. तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जिसको $20 मिलेगा वो ज्यादा टेंडेंसी से झूठ बोलेगा. ठीक है, कॉमन सेंस ये बोलता है. लेकिन कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ये नहीं बोलती. ये बोलती है कि $1 वाला ज्यादा टेंडेंसी से झूठ बोलेगा. ठीक है, क्योंकि डिसोनेंस आ जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज डिसोनेंस? लाइक फॉर एग्जांपल, देयर शुड बी कॉन्ग्रुएंसी और देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अवर एक्शन एंड बिलीफ. जिंदगी में हमारे एक्शन और बिलीफ में बैलेंस होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन and I am working in a correct department, so I can never live in peace. ठीक है, अगर मैं ये सोचूं कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं और मैं किसी करप्ट डिपार्टमेंट में काम करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा शांति से काम. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, या तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि ऑनेस्टी कुछ नहीं होती है, फालतू की बातें. ठीक है, ओके, तो इन दिस वे यू नीड टू चेंज आइदर योर एक्शन और योर बिलीफ. ओके, सो दैट इज वाई कॉमन सेंस है तो गलत आंसर आ गया ना. तो इस वजह से हम हमेशा कॉमन सेंस और लिमिट इंट्यूजन्स पर रिलाय नहीं रह सकते. ठीक है, इन द सेम वे देयर आर सम बायसेस आल्सो. ठीक है, बायसेस होती है ना, तो बायसेस, अगर आप बायस्ड हो किसी चीज के प्रति तो उससे भी काफी बार फॉल्टी डिसीजन आ जाते हैं. ऐसा हमारा फिस्क और टेलर ने बताया था. ठीक है, कुछ बायसेस होते हैं ना. ठीक है, जैसे ये काम ऐसे ही हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता, तो उससे भी कभी कभी आप गलत डिसीजन ले लेते हो ना. ओके, ये भी होता है लाइफ में. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जिसकी आंखें बुरी होती हैं उसमें से बोलते हैं ना, भरोसा मत करो, बायसेस है. ओके, सो दिस आल्सो लीड टू फॉल्टी डिसीजन. ये भी तो गलत डिसीजन लेके आ रहा है. ठीक है, तो बहुत सारे बायसेस होते हैं हमारी लाइफ में. देयर आर सो मेनी बायसेस. ओके, एंड दीस बायसेस आर बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस. उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस थोड़ी ना है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. ओके, ESP does not have any valid scientific evidence, but still we believe on them. Okay, in the same way, if we talk about other things also, like there are many things which do not have scientific evidences. Okay, for example, one more experiment I will tell you. If you heard about Milgram experiment, Milgram experiment याद है सबको? Milgram obedience to authority. ठीक है, obedience to authority. अब इस experiment में क्या हुआ था? In this experiment, like I'm just giving the overview of the experimental setup. There was one experimental, there was one learner, or there was one teacher. Okay, so the teacher used to give shock. Okay, now according to common sense, no teacher can give student a shock of 440 volt. 440 volt का शॉक कोई भी टीचर अपने बच्चे को नहीं देगा if he fail on the simple task. ठीक है, अगर कोई बच्चा सिंपल से टास्क में फेल हो जाए तो 440 वोल्ट का झटका कोई नहीं देगा, उसमें तो मर जाता है ना इंसान. ठीक है, ये हमारा कॉमन सेंस बोलता है. दिस इज अवर कॉमन सेंस. ओके, नो टीचर वुड बी so much harsh that he would give a shock of 450 volt on just failure of a learning task by the student. This is our common sense. But experiment क्या बोलता है? मिलग्राम एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि उसने शॉक दे दिया था, उस टीचर ने शॉक दे दिया था. Why? Because we obey the authority. हम ऑथोरिटी को ओबे करते हैं. ओके, जब क्या होता है, हम ऑथोरिटी को ओबे क्यों करते हैं? When we do not have any sense of responsibility. जब मुझे पता है कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो मैं मानता जाऊंगा उसकी बात है, मुझे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. ओके, और if I think that the other person is very powerful. ठीक है, जैसे हिटलर के टाइम पर क्या था, ओबीडियंस टू ऑथोरिटी तो था. ठीक है, उसको सब ओबीडियंट कर रहे थे, मान रहे थे उसकी बातों को. ओके, सो दिस इज आल्सो मिलग्राम एक्सपेरिमेंट आल्सो टॉक अबाउट दैट we cannot, common sense or intuitions are generally wrong. Therefore, we need to rely upon studies.
we need to rely upon scientific principle. Therefore, we should study psychology as science. Therefore, we should study psychology in relation to social science. Okay, now about science, you know how psychology and science are related to each other. Okay, both are replicable. Okay, both are free from biases, both have objectivity. Okay, both test the hypothesis. Okay, so these are some of the common points between psychology and science. In the same way, psychology is also related to social science. Psychology is also related to natural science. Okay, social science means it is related to history, polity, economic, law, uh, like history, polity, economic law, sociology, biology. Okay, forensics, criminal. In with every branch of social psychology, social science, psychology is related. Psychology हिस्ट्री से भी रिलेशन करती है, ठीक है. ओके, फिलोसफी से भी करती है, इकोनॉमिक्स से भी करती है, सबसे साइकोलॉजी का रिलेशन है. साइकोलॉजी का नेचुरल साइंस की ब्रांच से भी रिलेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी रिलेशन है, ठीक है. फिजिक्स में फॉर एग्जांपल, फिजिक्स में देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ एंजाइटी, ठीक है. एंजाइटी का लेवल मेजर करने के लिए यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है. तो ये हमारी कुछ थीम्स हो गई. ओके, नाउ द लास्ट कंसेप्ट इज, ठीक है, वेरी सिंपल. अभी तक किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? ठीक है, तो ये मेजर मतलब सब कुछ यही तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं, ठीक है. तो आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो गया होगा. एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, ओके. So now the last thing, there are some systems in psychology. Okay, now how can we use these systems? If you see that whenever we write the answers of psychology, there are always issues in writing the conclusion. ठीक है, प्रॉपर कंक्लूजन लिखने में ना दिक्कत आती है, ठीक है, साइकोलॉजी में. ठीक है, तो आप ना जो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को आप इस डिबेट की तरह लिख सकते हो, और यू कैन कंक्लूड लाइक दिस. ठीक है, जैसे माइंड वर्सेस बॉडी, ठीक है, एक हमारा सिस्टम है साइकोलॉजी में. ओके, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट एक सिस्टम है, ठीक है. तो आप जस्ट वहां पे ब्रीफ में लिख सकते हो कि बोथ हेरिडिटी एंड बोथ एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, बोथ माइंड एंड बॉडी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो इस तरीके से आल्सो यू कैन लाइक राइट द कंक्लूजन इन योर आंसर, नॉट एन इंट्रोडक्शन चैप्टर, इन अदर चैप्टर्स आल्सो. ओके, सो दीज आर कॉल्ड, दीज आर सिस्टम्स. ठीक है, जैसे जो साइकोलॉजी की जो डिबेट चलती आई थी, उनमें ये डिबेट है, मेजर डिबेट. जैसे हम नेचर वर्सेस नर्चर की बात करते हैं ना, तो हमें सिर्फ नेचर वर्सेस नर्चर ही पता है, बट अदर देन नेचर वर्सेस नर्चर देयर आर अदर डिबेट्स आल्सो. ओके, फॉर एग्जांपल माइंड वर्सेस बॉडी. ओके, सो इन साइकोलॉजी जस्ट लिसन टू मी, दीज आर वेरी सिंपल. वी टॉक अबाउट बोथ माइंड एंड बॉडी. ठीक है, दोनों की बारे में बात करते हैं ना. सो इन द स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ओके, सो in the time of structuralism, what they were told that both mind and body existed. ठीक है, जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले थे वो क्या बोलते थे कि माइंड और बॉडी दोनों एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और दोनों पैरेलल काम करती है. ठीक है, दोनों के बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है. दे आर वर्किंग अलोंग साइड बाय साइड इन अ पैरेलल स्ट्रीम. ठीक है, ऐसे पैरेलल स्ट्रीम की तरह काम कर रही है. देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड नाइदर वन कॉजेज द अदर. ओके, सो दिस इज माइंड वर्सेस बॉडी, जिसको हम डुअलिस्टिक सिस्टम भी बोलते हैं, डुअलिज्म भी बोलते हैं. ठीक है, इसी को ही हम डॉक्ट्राइन ऑफ साइकोफिजिकल पैरेललिज्म भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ साइकोफिजिकल पैरेललिज्म. ठीक है, ओके, डुअलिज्म, साइकोफिजिकल पैरेललिज्म, है ना. सो दिस इज लाइक द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज टेलिंग अबाउट इट, देयर इज नो रिलेशन or neither one causes the other. But when John Watson will come with the school of behaviorism, he will reject the concept of mind. ठीक है, वो तो मना ही कर देगा. ओके, वो तो बोल देगा कि माइंड का कुछ है ही नहीं. फॉर वॉटसन, साइकोलॉजी बिकम द स्टडी ऑफ ओनली बॉडीली रिस्पॉन्सेस. ठीक है, जो बॉडी में रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बस वही साइंस है, और हम बात ही नहीं करेंगे. ओके, सो वॉटसन रिजेक्टेड दिस कंसेप्ट, ओके, बिकॉज इट वाज नॉट ऑब्जर्वेबल इवेंट. ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना, है ना, और जो बिहेवियर है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज माइंड वर्सेस बॉडी, स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस बिहेवियरिज्म. ठीक है, ये हमारी एक डिबेट आती है, तो आप इस तरीके से आप बांट सकते हैं आंसर को. ओके, इन द सेम वे हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट आल्सो. ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, है ना. तो हेरिडिटी की भी बात करते हैं कि कुछ हेरिडिटी होता है हमारे यहाँ पर. ओके, इसी को ही हम नेटिविस्टिक बोलते हैं.
नेटिविस्टिक कल्चर. ओके, फॉर एग्जांपल चॉम्स्की सेड अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी कि वो पहले से ही होता है, इट इज हेरिडिटरी इन आवर बॉडी. ओके, बट ऑन द अदर हैंड इन कॉन्टेम्परेरी साइकोलॉजी वी टॉक अबाउट, देन वी टॉक अबाउट बिहेवियर आल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर ही वॉटसन आ जाएंगे, स्किनर आ जाएगा. ये क्या बात करते हैं, ये बिहेवियर की बात करते हैं. ओके, सो दिस कुड आल्सो बी वन ऑफ द डायमेंशन. ओके, अदर डायमेंशन आल्सो सब्जेक्टिविज्म वर्सेस ऑब्जेक्टिविज्म. ठीक है, हम इस तरीके से भी साइकोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे माइंड बॉडी इशू को हमने किया था ना, ऐसे ऑब्जेक्टिविज्म क्या हो जाता है, जो व्हाटएवर कैन बी सीन और मेजर्ड. ठीक है, सब्जेक्टिविज्म यानी कि सब्जेक्टिव, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ. ठीक है, ओके, सो ये भी जैसे बिहेवियरिज्म क्या होता है, बिहेवियरिज्म एम्फेसिस मोर अपॉन ऑब्जेक्टिविज्म. ऑब्जेक्टिविज्म बिहेवियरिज्म का था. ठीक है, जो अर्ली स्कूल था बिहेवियरिज्म का वो थोड़ा ऑब्जेक्टिविज्म वाला था. ठीक है, तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, एक्यूरेटली, प्रिसाइसली. ओके, बट सब्जेक्टिविज्म मींस आई शुड बी द फोकस, यू शुड बी द फोकस. ओके, सो व्हाट वर द प्रोपोनेंट ऑफ सब्जेक्टिविज्म, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो थे वो ये तो बात करते थे कि हम जरूरी हैं और कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, और अनदर देयर इज आल्सो वन कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजी, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी. ठीक है, तो ये भी इसके बारे में बात कर सकते हैं. दे आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट और इनर एक्सपीरियंसेस. ठीक है, कि मैं सब्जेक्टिव, आप इंपॉर्टेंट हो, हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कुछ भी. ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिबेट, डिटर्मिनिज्म वर्सेस थियोलॉजिकल. ओके, डिटर्मिनिज्म टॉक अबाउट दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर पास्ट बिहेवियर, सब कुछ आपके पास्ट के बिहेवियर की वजह से है. और जो थियोलॉजिकल होता है वो ये बोलता है कि नहीं नहीं, पास्ट नहीं, फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो फॉर एग्जांपल सिगमंड फ्रॉइड, they are the Sigmund Freud was the great supporter of deterministic viewpoint. Okay, he talk about that person behavior is wholly determined by the past experience. 5 साल में खत्म हो जाता है ना सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग तो. ठीक है, कि आपने जन्म दिया, ओरल स्टेज, और लास्ट में आपकी जो स्टेज आई, ठीक है, वहां पे खत्म हो गई कहानी. ओके, 5 साल में खत्म हो गया. So Freud was strict deterministic point of view. Okay, according to Sigmund Freud, a person is not the master of his fate. ठीक है, वो सारा का सारा पास्ट की वजह से डिटरमाइन होता है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड लॉजिकल वाले क्या थे, वो ये बोलते थे कि फ्यूचर डिटरमाइन, आपका आप जो एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, इट डिटरमाइन द प्रेजेंट बिहेवियर. ओके, कोई नाम बताएगा इसमें, जैसे कि एडलर. एडलर थे ना, एल्फ्रेड एडलर, वो ये बात करते थे, लॉजिकल की बात करते थे. ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, है ना. तो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव और भी काफी सारे लोग थे, एल्फ्रेड एडलर वाज वन ऑफ देम हु टॉक अबाउट लाइक फ्रॉम द फ्यूचर पर्सपेक्टिव. ठीक है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते थे. ओके, सो दिस कुड आल्सो बी डायमेंशन. ठीक है, इन द सेम वे रिडक्शनिज्म वर्सेस नॉन रिडक्शनिज्म. ठीक है, मतलब सब कुछ रिड्यूस कर दो, ठीक है, पॉइंट में बांट दो, है ना. सो दिस इज द स्कूल ऑफ रिडक्शनिज्म. ओके, दैट साइकोलॉजी रिड्यूस्ड टू द बेसिक लेवल ऑफ एनालिसिस. जैसे बायोलॉजी में हम बात तोड़ देते हैं ना उसको, कि ये नर्वस सिस्टम है, ये माइंड है, ये है, वो है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. ओके, सो दिस इज द रिडक्शनिज्म. ओके, सो रिडक्शनिज्म में हमारे बायोलॉजी वाले आ जाएंगे. ओके, और नॉन रिडक्शनिज्म में कौन से आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल नॉन रिडक्शनिज्म में हमारा स्किनर आ जाएगा, या फिर हम रिड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, हमको पूरा देखना पड़ेगा. ठीक है, पूरी तरीके से जब पूरा देखने की बात करते हैं तो कौन आ जाते हैं, हमारे गेस्टाल्ट वाले भी आ जाते हैं. ठीक है, ओके, लुइन भी आ जाता है इसमें, कोइट लुइन, जो पूरे एनवायरनमेंट को देखता है, पूरे बिहेवियर की बात करता है. ओके, सो दीज आर नॉन रिडक्शनिस्ट. ओके, दीज आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, है ना, जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स देखेंगे. ठीक है, थ्योरी वर्सेस डाटा, दिस इज आल्सो वन ऑफ द डायमेंशन. ठीक है, इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं सिस्टम को. जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने सब कुछ थ्योरी किया था. ओके, सारा का सारा थ्योरी के बेसिस पर ही तो बताया था उन्होंने, सिगमंड फ्रॉइड ने. ओके, सो सिगमंड फ्रॉइड कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द थ्योरी. ओके, एंड द अदर पीपल, फॉर एग्जांपल स्किनर, ही कंप्लीटली नेगेट द कांसेप्ट ऑफ थ्योरी, ही फोकसेस ओनली अपॉन डेटा. स्किनर सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात करते थे, जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ठीक है, और थ्योरी वाले हमारे सिगमंड फ्रॉइड हो गए. ठीक है, थ्योरी की बात करें, केस स्टडीज होती थी, रेटमैन, ओके, और एन्ना ओ फ्रॉइड, ये सारी केस स्टडीज से वो थ्योरी लेके आए, है ना. सो दे फॉर्मुलेटेड डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज विदाउट वेल कलेक्टेड डेटा. डेटा का यूज कहाँ किया था सिगमंड फ्रॉइड ने, सिगमंड फ्रॉइड ने तो केस स्टडीज का इस्तेमाल किया था ना, केस स्टडीज का इस्तेमाल किया था, उससे वो अपनी थ्योरी पर निकल के आए थे, डेटा का इस्तेमाल ही नहीं किया था. ओके, द डेटा वाज यूज्ड बाय स्किनर एंड अदर्स. Okay, so in this way you can divide, like if you
write any answer. So in this way you can divide different dimensions also while writing conclusion also. कोई क्वेश्चन में आपने conclusion लिख दिया तो आप वहां करेंगे, ठीक है। अब मैं देखूंगा आपको, I will give you some questions, then you will see that how you write them. Okay, so this is the major thing, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, मेजर थिंग्स को हमने डिवाइड कर दिया। ओके, सो जस्ट टू समराइज, मैं थोड़ा स्पीड में गया था ताकि आपका टाइम हमारे पास कमी है, जितने कम समय में ज्यादा कर सकें उतना बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, सो वी हैव सीन 4 major themes in introduction chapter. Okay, the first one are the major schools. Major schools are used to solve different dimensions. Okay, to mention different dimensions in paper 2. Okay, है ना, psychoanalysis, evolutionary perspective, ठीक है, just to add on information processing perspective, this kind of perspective we will add. Now the second one is how can we use the principle of psychology in solving societal problem, break down the work of the psychologist, Kurt Lewin theory, attitude change, reduction, cooperation versus cooperation. Okay, write their name, which man, है ना, Shepard and write about them, ठीक है। Kurt Lewin के बारे में लिखो, इनके नाम मेंशन करो आप, ठीक है ना। Then we have seen that why it is intuitions or common sense, why we cannot rely on intuition and common sense, and why, because of this experiment. Okay, then we should rely upon science, social science, natural science. Okay, and the last thing is the systems of psychology. Okay, mind versus body, heredity versus environment, molar versus molecular, subjectivism versus objectivism, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। ओके, तो आई थिंक 1 घंटा हुआ, तो मैं यहीं पे फिनिश करूंगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आया हो कुछ, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट गया था, ओके, अदरवाइज जिसको समझ में आ गया है दे कैन लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे काम करो अपना। आई हैव गिवन क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। उन 2 क्वेश्चंस को लिखो, कल मैं 2 और नहीं दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए। सर मोलार और मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस था? हाँ, मोलार और मॉलिक्यूलर भी, मतलब मैं मोलार और मॉलिक्यूलर भी एक है। मॉलिक्यूलर यानी कि आप उसको मॉलिक्यूल से बांट सकते हो, ठीक है, टुकड़ों में बांट सकते हो, ठीक है। मोलार बात करेगा पूरे की, कंप्लीट की बात करेगा, जैसे गेस्टाल्ट हमारा मोलार की बात करता था, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट तरीके से देखा ना मोलार उसमें, तो वो हमारा मोलार और मॉलिक्यूलर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारा रिडक्शनिस्ट और नॉन रिडक्शनिस्ट है ना, उसी तरीके का मोलार और मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलर में हम बांट देंगे, मॉलिक्यूल से बांट देते हैं ना, हम टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। और मोलार में हम पूरा देखते हैं गेस्टाल्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। सर फिर ये मोलार और मॉलिक्यूलर और रिडक्शनिज्म और नॉन रिडक्शनिज्म में क्या फर्क हुआ? फर्क नहीं है, बस देखो उसके अलग अलग नाम है। जैसे जो मोलार और मॉलिक्यूलर है ना, जैसे मोलार और मॉलिक्यूलर पहले आ गया था, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर है, किसमें बोलते हैं हम कि हम बांट देंगे, अपने कॉन्शियसनेस को बांट देंगे, तोड़ देंगे। किसमें बात करी थी हमने ये, अ, तोड़ के, जैसे तोड़, इंट्रोस्पेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट, हाँ, स्ट्रक्चरिज्म में बात की थी ना, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो वो ये मॉलिक्यूलर वाला था, ठीक है, कि तोड़ दो आप, जैसे इंट्रोस्पेक्ट करो, ठीक है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पोटैटो है, आलू है, तो आलू क्यों है, क्योंकि आप उसको ऐसे देख रहे हो, उसको आप ऐसे सेंस कर रहे हो, उसको आप आलू को फील कर रहे हो, आलू की खुशबू आ रही है तो आपने आलू बोल दिया, ठीक है। तो उस तरह से आपने उसको पार्ट में बांट दिया। अब मोलार क्या बोलता था, मोलार हमारा जो गेस्टाल्ट वाला हो गया वो था, ठीक है। तो ये पहले आ गया था, उसको बाद में क्या रिफाइन कर दिया, क्योंकि कर्ट जो लोइन जो थे वो बाद में आए थे ना, ठीक है। तो उन्होंने उसको एक रिडक्शनिस्ट और नॉन रिडक्शनिस्ट व्यू पॉइंट में कर दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक माइनर सा अंतर है उन दोनों के बीच में, ठीक है। सर आप इस तरह से हर चैप्टर का सेशन लेंगे क्या? हाँ, कोशिश तो यही है। बहुत हेल्पफुल होगा सर, दिस वाज रियली नाइस। हाँ, कोशिश तो यही है, थोड़ा कम टाइम में ज्यादा हो जाए काम। इंट्रोडक्शन का हो गया है, तो Sure. अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कल फिर पर्सनैलिटी का हो जाएगा, ठीक है। ठीक। चलिए, ओके। हाँ, दिव्यराज, यू आर आस्किंग समथिंग। हाँ, आप यू रेज योर हैंड ना, दिव्यराज। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है क्या? Experiment how to quote. Okay, so see, whenever you write your answer, okay, see, these are the
5 fundamentals when you write your answer. Whenever you write your answer in this way. IRTES. Okay. The first one is like introduction. Introduce the keyword which is given in the answer. Okay. So make good definition of all the keywords. Okay. Then the second part is researcher's name. Always try to quote one experimental name or one researcher name in your answer. ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि एक्सपेरिमेंटल और रिसर्चर नेम का आंसर नाम आए. अब आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, कैसे वो मेंशन होता है. ओके, कुछ बच्चों ने आंसर लिखे भी है ग्रुप में, आप उनको देखो तो आपको और समझ में आएगा. ठीक है, उसके बाद राइट द थ्योरी. आर इज रिसर्चर नेम. फिर देन राइट अबाउट द थ्योरी. Okay, write about the theory for that particular thing. Okay, E is example, or then is schema. ठीक है, introduction, researcher name, theory, example, schema. When you write this researcher name, then mention about the experiment. ठीक है, कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है. और एक्सपेरिमेंट को ना कभी बहुत डिटेल में नहीं बताना होता. ठीक है, जैसे मैंने आपको मिलीग्राम के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था. अब वो 2 पेज का एक्सपेरिमेंट है. अब वो 2 पेज का हमको सिर्फ रेफरेंस देना है. ठीक है, कि मिलीग्राम में ऐसा ऐसा था और मिलीग्राम ने ये बात की थी, तो उससे हमारी ये चीज निकल के आ गई. ओके, सो इन दिस वे यू नीड टू मेंशन अबाउट द एक्सपेरिमेंट. डू नॉट गो इन डिटेल. डिटेल में आपको नहीं बताना. और जब भी कोई आंसर लिखो, सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखना. ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा. सर स्कीमा मतलब फ्लो चार्ट डायग्राम्स वगैरह टाइप का कुछ ना? हाँ, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना. ठीक है. अखिल, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट भी मतलब क्या है, एक बार देख लो, उनके 4-5 नाम देख लो तो काम हो जाएगा. एक बार प्लेटो आया था, फिर एरिस्टोटल आया था. ठीक है, फिर रेने डेस्कार्ट्स आए थे, फिर जॉन लॉक आए थे, और फिर हमारे सारे स्कूल आ गए थे. तो वो तो हमने देख ही लिया ना, बस 4 नाम ही तो बचे हैं ऊपर के. हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट मतलब यही हुआ ना कि साइकोलॉजी पहले फिलोसफी हुआ करती थी, ये तो बात थी. तो बाकी के मतलब स्ट्रक्चरिज्म से लेकर तो सारे हमने देख ही लिए, बस 4 नाम तो बचे हैं. तो एक बार देख लो, अगर इनके साथ आए एटलीस्ट नाम तो याद रखो. ठीक है, प्लेटो आया, प्लेटो के बाद डेस्कार्ट्स आया, फिर सॉरी प्लेटो के बाद अरिस्टोटल आया, फिर रेने डेस्कार्ट्स आया. ठीक है, उसके बाद जॉन लॉक आया. ठीक है, और फिर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सब आ ही गए थे. फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म वी स्टार्ट रीडिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस. ठीक है. हाँ दिव्यराज, इफ यू कैन राइट इन पॉइंट्स देन दैट वुड बी बेटर. ठीक है, पॉइंट्स पे लिखोगे तो बेटर रहेगा, है ना. बाकी हम जब लिखेंगे ना आंसर, अभी तो आपको काफी सारे आंसर्स लिखने हैं, तो मैं आपको और बता दूंगा. ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता कि पैराग्राफ में लिखना गलत होगा. ठीक है, अब दोनों के ना कुछ कुछ प्लस हैं, कुछ नेगेटिव है. अब वो देखना पड़ेगा कि आप आंसर में क्या लिख रहे हो, कंटेंट आपका कैसा जा रहा है. ठीक है, तो वंस यू स्टार्ट राइटिंग देन आई विल टेल यू कि अगर आप पैराग्राफ में सही लिख रहे हो तो कोई बात नहीं. अगर उसमें आपका निकल के नहीं आ रहा है प्रेजेंटेशन, देन आई विल सजेस्ट कि आप पॉइंट में लिखेंगे. ठीक है. ओके, तो फिर कल मिलते हैं ना. चलिए, ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.